Hello students, in the previous lecture we started with the Specific Relief Act and we have already discussed one of the reliefs given under the Specific Relief Acts, that is the recovery of possession of the property, and the recovery of possession of immovable property is given under sections 5 and 6 of the Specific Relief Act, and the recovery of movable property is given under section 7 and 8 of the Specific Relief Act. Now coming to the next kind of relief that is given under the Specific Relief Act, which is the specific performance of contract. So this is given under chapter 2 of the Specific Relief Act. This particular chapter is extremely important for the purpose of your examination. Even in case of mains, some questions are being asked from this particular chapter only. And the 2018 amendments that were made in the Specific Relief Act further enhances the importance of this particular chapter for the purpose of your examination. Fine. So a major amendment was made in the year 2018 in chapter 2 of the Specific Relief Act that has actually brought a paradigm shift in the Specific Relief Act. So previously what was used to happen was that court was given a discretion to either grant relief in the form of damages or either give specific performance in case of breach of contract. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या रेमेडी होगी. फाइन. सो नॉर्मली कोर्ट्स क्या करते थे इंडिया में, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता था कोई भी पार्टी, तो दूसरी पार्टी जब कोर्ट में रिलीफ मांगने आती थी तो उसको जो है डैमेजेस या कॉम्पनसेशन के फॉर्म में रेमेडी दी जाती थी. लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो अमेंडमेंट 2018 में हुआ है उसने कहीं ना कहीं इस स्टैंस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है. अब कोर्ट के पास ऐसा कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो हर केस में डैमेजेस ही दे किसी भी पार्टी को इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इवन द कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट स्पेसिफिक रिलीफ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सी स्पेसिफिक रिलीफ का जो सीधा सा मीनिंग है वो ये है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो आपने वादा किया या जो आपने प्रॉमिस किया, जो आपने एग्रीमेंट किया, वही आपको फॉलो करने के लिए या फुलफिल करने के लिए कंपेल किया जाए. सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज बेसिकली दी एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन दैट यू हैव प्रोमिस्ड टू फुलफिल इन योर कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आपने जो चीज़ करने के लिए आपने प्रॉमिस किया था, अगर वही करने के लिए आपको कंपेल किया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. फाइन. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक बिल्डिंग सेल करने का एग्रीमेंट किया और अब अगर उसने वो बिल्डिंग सेल करने से मना कर दिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया बेसिकली, तो उस केस में कोर्ट अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के फॉर्म में वही बिल्डिंग जो है वो एग्रीव्ड पार्टी को दे देगी या ट्रांसफ़र करा देगी. फाइन. अदरवाइज कोर्ट पहले ये भी कर सकती थी कि चलो आपको बिल्डिंग नहीं मिल रही है, उसके बजाय आप जो है डैमेजेस ले लीजिए. सो बेसिकली द कोर्ट वॉज हैविंग अ डिस्क्रिशनरी पावर, बट दिस डिस्क्रिशनरी पावर वॉज समवट curtailed by the Amendment Act of 2018. Only in certain conditions, only in certain situations, the court is now having a discretionary power to give damages or compensation as a form of remedy in case of breach of contract. But ideally and generally, as a general rule, the court is bound to give specific performance as a remedy in case of breach of contract. So we will be studying all these aspects wherein the court can give specific performance or wherein the court is also empowered to give compensation or damages in case of breach of contract. Fine. So this all of things are given under the chapter 2 of the Specific Relief Act. So chapter 2 of the Specific Relief Act provides with the remedy of specific performance of contract. Specific performance का क्या मतलब है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो स्पेसिफिक एग्रीमेंट या प्रॉमिस किया था पार्टी ने, वही उसको परफॉर्म करने के लिए कंपेल किया जाए. सो दिस इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकती है कोर्ट, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहाँ दिए हैं,
chapter 2 of specific relief act. This is given under sections 9 to section 25 of the specific relief act. So ये जो सारे sections हैं ये बहुत ज़्यादा important हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. So section 9 provides with the provision of defenses respecting suits for relief based on contract. So अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी जो एक पार्टी एज अ डिफेंस यूज़ कर सकती है अपने सूट में, सो उसको जो है वो डिफेंसेस क्लेम करने के लिए अलाउ करने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 9 में दिया गया है. सो सेक्शन 9 सेज एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयरिन. फाइन. सो अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कहीं स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कोई भी प्रोविजन, वहाँ पे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई होगा. लेकिन अगर किसी सिचुएशन में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं दिया गया है तो उस केस में क्या किया जाएगा? वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड, इफ द रिलीफ इज क्लेम्ड इन द सूट अंडर दिस चैप्टर in respect of a contract, the person against whom the relief is claimed, that is the defendant. So ये जो provision है वो किसके ऊपर applicable है? basically defendant के ऊपर. So the person against whom the relief is claimed may plead. That person may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts. So section 9 basically says if the specific or particular kind of relief is given under the contract law, the defendant can claim that particular defense in his case. Fine. But if the particular relief cannot be claimed by him under the specific relief act, or the specific relief act specifically denies that particular defense, in that case the defendant cannot claim that defense. So ये defendant सिर्फ किस केस में उस defense को ले सकता है? जब specific relief act में specific denial नहीं है, और अगर contract law में वो उस particular defense को ले सकता है, और अगर contradictory नहीं है उस specific relief act से, in that case even he can claim the remedy under the contract law as well. This is not that much important. This is only an enabling provision in favor of the defendant. Now coming to the most important sections of the Specific Relief Act, starting with section 10. Section 10 is the main section that provides with the provision of specific performance in respect of contracts. So section 10 basically provides in which cases specific performance can be granted by the court of law in case of breach of contract. So section 10 किस aspect की बात करता है? Specific performance in respect of contract. किन contract के केस में specific performance दी जा सकती है? The specific performance of a contract shall be enforced. Mind this word shall. So this is basically mandatory provision. This is mandatory on the part of the court. So court के power के ऊपर एक तरह से ये restriction है कि court को ये करना ही पड़ेगा, और court को क्या करना पड़ेगा? Specific performance देनी पड़ेगी. Shall be enforced by the court, but this is subject to the provisions contained in section 11 clause 2, section 14 and section 16. So section 10 is the general rule. General rule क्या कहता है कि कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देगी. जब भी कोर्ट के पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी केस आएगा तो कोर्ट क्या करेगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उस केस में एज अ रेमेडी देगी, एंड इट इज बाउंड ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट. कोर्ट को ये डिस्क्रिशन नहीं दिया गया है, फाइन, बल्कि कोर्ट के ऊपर ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि कोर्ट के पास जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आएगा तो क्या रिलीफ देगा कोर्ट?
डैमेजेस या फिर कॉम्पनसेशन इन मनी नहीं, बल्कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेमेडी कोर्ट देगा। बट दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? सेक्शन 11 क्लोज 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16। सो इन 3 इंस्टेंसेस को छोड़ के अगर वो केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस है वो सेक्शन 11 क्लोज 2, सेक्शन 14 या सेक्शन 16 में फॉल कर रहा है, तो उस केस में तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिनाई कर सकती है। लेकिन अगर इन तीनों सेक्शंस के अलावा कोई और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराएगी, कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया था वही उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एग्रीव्ड पार्टी को कोर्ट यहाँ पे कॉम्पनसेशन या फिर सिर्फ डैमेजेस देके केस को खत्म नहीं कर सकती है। दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 2018 में आई है। 2018 से पहले का अगर हम सेक्शन 10 देखें तो वो बिल्कुल ही अलग था, और वो क्या फॉर्म थी उस सेक्शन की? उसकी फॉर्म थी ये वाली। सो पहले जो सेक्शन 10 था 2018 से पहले, वो क्या कहता था? It provided with the cases in which specific performance of contract enforceable, it said, except as otherwise provided in this chapter, the specific performance of any contract may, in the discretion of the court, फिलहाल क्या वर्ड है? shall, फिलहाल मैंडेटरी कर दिया है कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर कि जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आएगा तो आपको क्या रेमेडी देनी है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। लेकिन 2018 से पहले की क्या पोजीशन थी कि कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया गया था कि कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकती है, और अगर कोर्ट चाहे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेजेस दे के भी केस को ख़त्म कर सकती है। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना मैंडेटरी नहीं था ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट वॉज एक्चुअली गिवन अ डिस्क्रिशनरी पावर। लेकिन क्या फिलहाल डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास? कोर्ट डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर एट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स। तो किन केसेस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती थी? When there exists no standard for ascertaining actual damage caused by the non performance of the act। अगर कोर्ट को लगता है कि नॉन परफॉर्मेंस से एक्चुअल डैमेज को असरटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कोर्ट अगर चाहे तो क्या कर सकती थी? स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकती थी। और अगर कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिकली परफॉर्म ना करा के डैमेजेस भी दे सकती थी। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है वो ये है कि बेशक से डैमेजेस असर्टेनेबल हों। हमें पता है कि जिस बिल्डिंग को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज़, और कोर्ट को इसकी वैल्यू भी पता है, असर्टेनेबल है इन अमाउंट ऑफ मनी, बट स्टिल द कोर्ट इज नाउ बाउंड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर फिलहाल का अगर हम लॉ लगाएं तो कोर्ट के ऊपर ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि कोर्ट इस केस में सिर्फ एक ही रिलीफ देगी, और वो रिलीफ क्या होगा कि आप ये बिल्डिंग जो है जिसको आपने प्रॉमिस किया है उसको बेच दीजिए। स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएगी कोर्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। लेकिन पहले की पोजीशन थोड़ी सी अलग थी। पहले अगर असर्टेनेबल था अमाउंट ऑफ डैमेजेस तो वहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन था कि कोर्ट अगर चाहे तो स्पेसिफिकली परफॉर्म ना करा के सिर्फ डैमेजेस से भी काम चला सकती थी। उसके अलावा व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज सच दैट कॉम्पनसेशन इन मनी फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। दूसरा कब इंस्टेंस था जब कोर्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएगी, जब कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। सिर्फ पैसे देने से जो एडिक्वेट रिलीफ अगर पार्टी को नहीं मिलता है तो उस केस में भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन दिया गया था कि कोर्ट अगर चाहे तो स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकती है। लेकिन फिलहाल क्या पोजीशन है कि बेशक से कॉम्पनसेशन इन मनी may afford an adequate relief, even in that case the court is bound to order specific performance of the contract. Fine. इसके अलावा सेक्शन 10 में और क्या सिचुएशंस थी? It provided that the breach of a contract to transfer immovable property cannot be adequately relieved in compensation of money. This was specifically given कि immovable property के केस में
कोर्ट क्या मान के चलेगा कि कॉम्पनसेशन इन मनी से काम नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, if the particular article is not an ordinary article of commerce, जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलता है, या स्पेशल वैल्यू है, दादा पर दादा की प्रॉपर्टी है, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में से लेके आना पॉसिबल नहीं है, तो उन केसेस में भी कोर्ट क्या करता, कोर्ट के पास क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि कोर्ट उन केसेस में अगर चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है, और अगर फिर भी चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए, कोर्ट की मर्जी थी। लेकिन फ़िलहाल कोर्ट के पास ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है। इसको बोलते थे हम डबल डिस्क्रिशन। डबल डिस्क्रिशन का मतलब क्या है कि एक तो डिस्क्रिशन यहाँ पे कोर्ट को ही दे दिया, और दूसरा डिस्क्रिशन था कि कोर्ट ये देखेगी कि कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं। फाइन, सो कंडीशन फुलफिल होने का जो एस्पेक्ट है वो भी कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया। उसके अलावा अगर कंडीशन फुलफिल भी हो रही हैं, उसके बाद भी कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना दे। लेकिन फिलहाल अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, अगर केस सेक्शन 11, सेक्शन 14 या सेक्शन 16 में फॉल नहीं कर रहा है, तो उन केसेस में कोर्ट के पास अब डबल डिस्क्रिशन नहीं है। एक बार ये कंडीशन फुलफिल हुई, केस सेक्शन 11, सेक्शन 14 या सेक्शन 16 में फॉल नहीं किया, अब कोर्ट के पास कोई और चॉइस नहीं है, बल्कि कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का। फाइन, सो ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिसेंटली ही अमेंड हुआ है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 11, देखो सेक्शन 10 जो है फिलहाल कितना छोटा कर दिया है, सिर्फ 2.5 लाइन का है। उससे पहले जो सेक्शन 10 था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी एक्सप्लेन्ड था, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी कोर्ट को। लेकिन फिलहाल क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर हटाई दी गई है, तो इसलिए ये जो है फॉर्मेट भी इसका बहुत छोटा हो गया। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर केस सेक्शन 11 क्लोज 4, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 में फॉल नहीं कर रहा है, तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, क्या चॉइस है, सिर्फ एक ही चॉइस है कि कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी ही पड़ेगी। सो कोर्ट को अब सिर्फ एक ही पावर दी गई है कि आप ये देख लीजिए कि क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस आपके पास आया है, क्या वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो सेक्शन 11 क्लोज 4 या सेक्शन 14 या सेक्शन 16 में फॉल कर रहा है। अगर इन सेक्शन में फॉल कर रहा है, तब तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि कोर्ट अगर चाहे तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई कर सकती है। लेकिन अगर केस ऐसा है जो सेक्शन 11 क्लोज 4, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 में फॉल नहीं कर रहा है, तब कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही ऑर्डर करना पड़ेगा। Now coming to section 11, that provides with the cases in which specific performance of contracts connected with trusts enforceable. So trust के केस में कब specific performance enforce कराई जा सकती है, कब, बहुत बार ये sections भी पूछे जाते हैं कि section 10 में क्या है, section 10 में क्या है, specific performance in respect of contract, किन केसेस में specific performance कराई जाएगी, ये है section 10 में। और सेक्शन 11 में क्या है, ट्रस्ट के केस में कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स कराई जाएगी। ट्रस्ट, क्लोज 1 सेज एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल, दिस इज अगेन मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust. So अगर कोई एक ट्रस्ट बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रस्ट बनाया गया है वेलफेयर पर्पज़ के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए कोई एक ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक है, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर एक ट्रस्ट बना दिया। उसके बाद इस ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो अगर इस ट्रस्ट के नाम पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में जब केस कोर्ट में आएगा, तो कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन क्या है कि उस ट्रस्ट का ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जाएगी। सो ट्रस्ट के केस में देखो, हर एक ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होता है जिसके
जो बेसिकली एक एजेंट है पूरे ट्रस्ट का, जिसके नाम पे सारे काम एक तरह से होते हैं, जो सारे काम करता है ट्रस्ट के, ठीक है। अब ये ट्रस्टी अगर ट्रस्ट के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी थर्ड पार्टी के साथ, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है ट्रस्ट, ठीक है, तो अब जो एग्रीड पार्टी है वो अगर कोर्ट में आएगी तो कोर्ट के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है कि कोर्ट उस ट्रस्ट को बोलेगी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। और दिस इज एप्लीकेबल इवन द अदर वे राउंड ऑल्सो। अगर कोई पर्सन किसी ट्रस्ट के साथ कोई एग्रीमेंट करता है और अगर वो उसको ब्रीच कर देता है, तो ट्रस्ट भी जब कोर्ट के पास आएगा रिलीफ लेने के लिए, तो कोर्ट यहाँ पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही देगी। सो ट्रस्ट के केसेस में जनरल रूल क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी जाएगी, फाइन। बट देर इज एन एक्सेप्शन विच इज गिवन अंडर clause 2 of section 11. Clause 2 says a contract made by a trustee. So this is a contract which is made by whom? By the trustee, but in excess of his powers. So trustee को जितनी पावर दी गई थी उसने उसकी एक्सेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर ट्रस्ट को ब्रीच करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है थर्ड पार्टी के साथ, दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। So this is an exception to the general rule. जनरल रूल क्या था कि ट्रस्ट के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन अगर ट्रस्टी ने अपनी पावर को एक्सीड करके या ट्रस्ट को ब्रीच करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 10 ऑल्सो। सेक्शन 10 में जनरल रूल ये था कि जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आएगा तो कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि कोर्ट उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएगा। लेकिन हमने देखा था कि सेक्शन 10 में भी ये एक एक्सेप्शन था कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 क्लोज 2। सो 11 क्लोज 2 क्या कहता है कि अगर ट्रस्टी ने अपनी पावर को एक्सीड करके या इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकता है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और उसका एक ट्रस्टी भी अपॉइंट किया गया था। अब इस ट्रस्टी के पास पावर थी कि ये 1 करोड़ तक के जो अमाउंट है उसको उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम इसको लिमिट दी गई थी कि आप 1 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ट्रस्टी ने क्या किया, ट्रस्टी ने 2 करोड़ रुपीस का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ट्रस्टी ने यहाँ पे अपनी पावर एक्सीड कर ली, ठीक है। पावर इसको सिर्फ 1 करोड़ तक की ही दी गई थी, लेकिन इसने 2 करोड़ रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टी ने अपनी पावर्स को एक्सीड करके या फिर ट्रस्ट को ब्रीच करके वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर वो विद इन पावर्स, अगर वो 1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट करता और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ ब्रीच कर देता तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती थी, लेकिन क्योंकि इस केस में ट्रस्टी ने अपनी पावर्स को एक्सीड करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, फाइन। सो ये एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन एज वेल। Now section 12 basically talks about specific performance of part of contract. Part of contract का क्या मतलब है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको आपने आधा तो कर दिया, पार्ट फुलफिलमेंट तो हो गई लेकिन पार्ट आपने नहीं किया। सो आधा पार्ट आपने फुलफिल कर दिया लेकिन आधा पार्ट अगर फुलफिल नहीं किया, बेसिकली ब्रीच कर दिया है आधा पार्ट, तो उस केस में कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है, दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखो बहुत बार ये सेक्शन से पूछे जाते हैं कि सेक्शन 11 में क्या है। सेक्शन 11 में ट्रस्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई है, सो इसको हम याद करेंगे ट्रस्ट से। ट्रस्ट को भी हम सेक्शन 11 से कैसे याद किया कर सकते हैं। जो 11 है दिस इज एक्चुअली अ मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ। वन की मिरर इमेज जो है वो 1 ही बनती है। सो बेसिकली जो भी इंसान जो खुद है वही अगर वो दूसरे के सामने भी है तो उसको हम ट्रस्ट वर्दी बोल सकते हैं, राइट।
सो बेसिकली हम जो दिल के सच्चे इंसान होते हैं, जो दूसरों के सामने वही है जो उनकी रियलिटी है, कोई प्रिटेंशंस नहीं है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो ट्रस्ट की बात कहाँ की गई है सेक्शन 11 में, जो बिल्कुल सेम है, जो प्राइवेट लाइफ में भी वैसा ही इंसान है जो वो पब्लिक लाइफ में है। खुद की मिरर इमेज होना जो है वो आपको ट्रस्टवर्दी बनाता है। सो ट्रस्ट की बात कहाँ पे की गई है, सेक्शन 11 में। अब सेक्शन 12 में किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात की गई है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट, नॉर्मली हम पार्ट को कैसे बोलते हैं कि अगर दो चीज़ें हैं उसके दो हिस्से कर दिए, तो दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। सो आधा अगर कर देते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो हमने उसका पार्टीशन कर दिया या पार्ट में डिवाइड कर दिया। फाइन। सो आधा, आधी रात किस टाइम होती है, आधी रात होती है रात को 12 बजे। सो 12 बजे या सेक्शन 12 में किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात की गई है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट को हमने कैसे याद किया कि रात को 12 बजे आधी रात हो जाती है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द नाइट हैव पास्ड एट 12 o'clock इन द नाइट। फाइन। सो 12 AM पे पार्ट ऑफ द नाइट हैव पास्ड। सो सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें जो सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश टाइप के एग्जाम्स में या फिर राजस्थान में भी फॉर दैट मैटर सिंपल सेक्शंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कभी कभी दिल्ली जैसे स्टेट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो इट सेज except as otherwise hereinafter provided in this section, the court shall not direct the specific performance of a part of contract. So general rule क्या है कि कोर्ट जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकती है। दिस इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ कि जब भी कोई ऐसा केस आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें एक पार्टी बोल रही है कि जी मैं आधा एक पार्ट तो कर दूंगा इसका परफॉर्म, लेकिन मैं बाकी का पार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बाकी का पार्ट परफॉर्म करना इलीगल हो गया है या फिर किसी और डिसेबिलिटी के कारण वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे क्या रिलीफ दे सकती है कि पूरे के पूरे या तो आप पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म कराओ या फिर पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप डैमेजेस दे दो। फाइन। आधा ऐसा नहीं हो सकता है कि आधा कॉन्ट्रैक्ट आप स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएंगे और आधे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है डैमेजेस देंगे। या तो पूरे के लिए डैमेजेस दो या तो पूरे को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराओ। फाइन। सो जनरल रूल यही है कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। नाउ क्लोज टू सेज वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म, अनेबल टू परफॉर्म, नॉट अनविलिंग टू परफॉर्म। अनेबल टू परफॉर्म का क्या मतलब है कि विलिंगनेस तो है उसमें परफॉर्म करने की, वो चाहता है परफॉर्म करना, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है। सो व्हेन द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए अनेबल है अगर कोई पार्टी, बट द पार्ट ऑफ विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट है जो अनपरफॉर्म्ड रहेगा बाय ओनली अ स्मॉल पोर्शन, और जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है विच दैट पार्ट इज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सारी एग्रीमेंट्स हैं तो मान लो 10 टोटल बिल्डिंग्स अगर किसी ने बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है दूसरी पार्टी के साथ, अब उसने 9 बिल्डिंग्स तो उसने जो है बना दी, लेकिन एक बिल्डिंग बनाने में उसको दिक्कत आ रही है क्योंकि उस बिल्डिंग की जो जिस लैंड पे वो बिल्डिंग है वो इलीगल है या फिर गलत तरीके से खरीदा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ये इतना पार्ट तो परफॉर्म हो सकता है स्पेसिफिकली
लेकिन एक स्मॉल पोर्शन है जो परफॉर्म नहीं हो सकता है, तो उस केस में if one party is unable to perform the small portion of the contract and the other party actually admits compensation in money, फाइन। सो ये पार्टी ये बोल रही है कि जी देखो 9 बिल्डिंग तो मैंने तैयार कर दी है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग में दिक्कत आ रही है, तो 9 बिल्डिंग के लिए आप जो है बेशक से इन बिल्डिंग्स को मेरे से आप खरीद सकते हो, और एक बिल्डिंग के लिए मैं मनी कॉम्पनसेशन दे सकता हूँ आपको। इन दैट केस द कोर्ट में, तो यहाँ पे कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन दिया गया है, द कोर्ट में एट द सूट ऑफ आइदर पार्टी, यहाँ पे कोई भी एक पार्टी सूट फाइल करती है, उसका कोई वो नहीं है कि बायर सूट फाइल करेगा या सेलर सूट फाइल करेगा। अगर कोई भी पार्टी सूट फाइल कर देती है, इन दैट केस द कोर्ट में डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड एंड अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी। सो इस केस में कोर्ट के पास क्या डिस्क्रिशन है कि कोर्ट अगर चाहे तो जितना पार्ट परफॉर्म हो सकता है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकती है, कि चलो आपने 9 बिल्डिंग तैयार कर दी तो उनको तो आप सेल कर दीजिए जिस पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और एक बिल्डिंग आप नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारण से जो जिसके ऊपर आपका कोई कसूर नहीं है, और उसके लिए आप तैयार भी हैं कि मैं कॉम्पनसेशन दे दूंगा, फाइन। तो उस केस में कोर्ट जो है ये मेजर पार्ट परफॉर्म करा लेगी, और जो स्मॉल पार्ट है उसको अनपरफॉर्म छोड़ के उसके लिए कॉम्पनसेशन इन मनी भी दे सकती है, फाइन। सो बेसिकली जनरल रूल ये था कि पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन यहाँ पे क्लोज टू में ही एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो बहुत स्मॉल पोर्शन है, बहुत ही कम है कंपेयर टू द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में स्मॉल पोर्शन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने मेजर पोर्शन तो आपने परफॉर्म कर ही दिया है, या फिर आप परफॉर्म कर पाने के लायक है, एक छोटा सा पोर्शन ही तो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में उस स्मॉल प्रोपोर्शन को के लिए कॉम्पनसेशन मनी दे दी जाएगी, और जो लार्ज पार्ट है उसको परफॉर्म करा दिया जाएगा, फाइन। सो दिस वन इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ये ध्यान रखना कि जनरल रूल ये है कि पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन अगर स्मॉल पोर्शन ही है जो अनपरफॉर्म्ड रह रहा है, तो उस केस में कोर्ट जो है उस स्मॉल पोर्शन के लिए डैमेजेस देके या कॉम्पनसेशन देके, और जो लार्ज पोर्शन है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकती है। सो यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट था वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। Now coming to clause 3 of section 12, it says where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it and the part which must be left unperformed, जो part unperformed रह गया है, either forms a considerable part, वो जो part unperformed रह गया है वो considerable part है of the whole, though admitting of compensation in money, although the party is willing to एडमिट कॉम्पनसेशन इन मनी, फाइन। सो यहाँ पे तो बात थी कि स्मॉल पोर्शन ही था जो अनपरफॉर्म्ड रह गया था, लेकिन अब बात आती है कि अगर अनपरफॉर्म्ड पार्ट कंसिडरेबल पार्ट है, फाइन। सो यहाँ पे जो हमने बात की थी कि अगर 10 बिल्डिंग्स को सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से सिर्फ एक बिल्डिंग को सेल कर पाना पॉसिबल नहीं था, या उस बिल्डिंग को डिमोलिश कराया जाना पड़ा, बाकी 9 बिल्डिंग्स को सेल कर पाना पॉसिबल था, तो इस केस में कोर्ट के पास क्या ऑप्शन था कि कोर्ट बोल सकती है कि आप एक काम कीजिए, इन 9 बिल्डिंग्स को आप जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म करा दीजिए, दूसरी पार्टी को आप ये हैंड ओवर कर दीजिए ये 9 बिल्डिंग्स तो, और ये जो 10th बिल्डिंग है इसके लिए आप कॉम्पनसेशन दे दीजिए उनको जितना भी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेजर पार्ट जो था, जो कंसिडरेबल पार्ट था वो परफॉर्म हो पा रहा था, और ये जो स्मॉल पोर्शन था सिर्फ यही परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, फाइन। लेकिन अब बात आती है अगर कंसिडरेबल पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट का वही परफॉर्म ना हो पाए, मान लो एक बिल्डिंग तो वो बेच पा रहा है, लेकिन ये 9 बिल्डिंग्स जो हैं वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी या फिर गलत लैंड पे बनाई गई थी जिनको डिमोलिश कराना पड़ा, तो इस केस में मेजर जो कंसिडरेबल पार्ट है वो तो परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही परफॉर्म हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? उस केस में even though the person is admitting compensation in money or the person does not admit compensation in money,
he is not entitled to obtain a degree of specific performance. Fine. So considerable part अगर परफॉर्म कर अनपरफॉर्म्ड रह जाता है तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी. बट देर इज अगेन एन एक्सेप्शन. बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी अगर सूट फाइल करती है, देन द कोर्ट इज हैविंग ए डिस्क्रिशनरी पावर. द कोर्ट में डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट, जिस पार्टी का फॉल्ट है उसको क्या डायरेक्ट कर सकती है, टू परफॉर्म स्पेसिफिकली so much of his part of the contract as he can perform if the other party, in case falling under clause A, pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and a case falling under clause B, pays or has paid the consideration for the whole of the contract without any abatement. फाइन. सो इस केस में मान लो 9 बिल्डिंग्स को सेल कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही बिल्डिंग को सेल कर पाना पॉसिबल है. तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, बल्कि कोर्ट सिर्फ यही करेगी कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही परफॉर्म नहीं कराएगी. ठीक है. तो पार्ट परफॉर्मेंस क्योंकि नहीं हो सकती है, और यहाँ पे अगर स्मॉल पोर्शन अनपरफॉर्म्ड रहा होता तो उस केस में कोर्ट फिर भी बोल देती कि चलो स्मॉल पोर्शन ही अनपरफॉर्म्ड रहा है तो आप पूरा बाकी जितना कर पा रहे हो उतना कर दीजिए आप काम. लेकिन यहाँ पे तो कंसिडरेबल पोर्शन तो अनपरफॉर्म्ड रह रहा है, सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही परफॉर्म हो पा रहा है. तो कोर्ट के पास भी यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है. अगर यहाँ पे ये जो बिल्डर है बिल्डिंग का, ये कोई केस फाइल करता है और दूसरी पार्टी को बोलता है कि आप उनको, जो कोर्ट ऑफ लॉ को बोलता है कि आप इस दूसरी ऑपोजिट पार्टी को ऑर्डर कीजिए कि जो मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का आप मुझे अमाउंट दे दीजिए. फाइन. तो यहाँ पे कोर्ट जो है इस बिल्डर को कोई भी रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि उस बिल्डर ने मेजर या कंसिडरेबल पार्ट तो परफॉर्म नहीं किया है. लेकिन अब यहाँ पे अगर जो बायर है उस प्रॉपर्टी का, अगर वही ये बोल दे कि ठीक है जी, ये 9 बिल्डिंग अगर नहीं भी बेच पा रहा है तो कोई बात नहीं, ये एक बिल्डिंग में खरीद लूंगा, तो उस केस में बेशक से कंसिडरेबल पार्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे फिर से कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी कि कोर्ट जो है बायर को एक बिल्डिंग खरीदने के लिए उसको हैंड ओवर कर सकता है वो प्रॉपर्टी, और जो बाकी जो 9 बिल्डिंग्स थी उनके लिए उसको कॉम्पनसेशन इन मनी दी जा सकती है. दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर क्लोज 3. लेकिन इस केस में जो बिल्डर है उसको, उस बायर को बाकी 9 बिल्डिंग्स का सारा अमाउंट जो है वो कॉम्पनसेशन में देना पड़ेगा. सब क्लोज 2 further says in either case, either of A or B relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency or for the loss of or damage sustained by him through the default of the defendant. So subclause 2 basically talks about if the other party, that is specifically in this case the buyer, if he relinquishes his right to compensation, वो बोल दे कि चलो ठीक है, यहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बिल्डिंग खरीद लेता हूँ आपसे, बाकी आपका जो नुकसान हुआ वो तो अनअवॉइडेबल इंस्टेंस था, आपकी भी कोई गलती नहीं थी, तो मैं रिलिक्विश कर देता हूँ बाकी सारे अपने राइट्स को, यहाँ पे कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मांगता है. तो उस केस में भी कोर्ट जो है सिर्फ स्मॉल पोर्शन को भी स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकती है. फाइन. और सब क्लोज 1 जो था यहाँ पे बात की गई है कि अगर मान लो इस केस में ये बायर कॉम्पनसेशन मनी देने के लिए रेडी है और बायर वो कॉम्पनसेशन इन मनी से सेटिस्फाइड है, तो उस केस में भी सिर्फ स्मॉल पोर्शन का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है. अदरवाइज पार्ट परफॉर्मेंस एज अ जनरल रूल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फाइन. सो ये 2 एक्सेप्शंस हैं. तीसरा एक्सेप्शन है क्लोज 4 में. सो क्लोज 4 talks about separate and independent part. It says when a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from the another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part. So part of the contract
देखो अगर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से कुछ पार्ट है जो परफॉर्म हो सकता है और कुछ पार्ट है जो परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो इस केस में अगर ये पार्ट दूसरे पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का है उससे कंप्लीटली सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में भी कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि कोर्ट अगर चाहे तो जो पार्ट परफॉर्म हो सकता है उसको परफॉर्म करा सकती है और जो पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है उसके लिए कॉम्पनसेशन दे सकती है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें 4 प्लॉट्स ऑफ लैंड को सेल करने की बात की गई है, इनमें से 2 प्लॉट्स तो हैं हरियाणा में और 2 प्लॉट्स हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब ए जो है वो सेलर है और बी जो है वो बायर है। फाइन। अब ए जो है उसके पास 4 प्लॉट्स थे, 2 यूपी में और 2 हरियाणा में। उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सेल ऑफ दीज 4 प्लॉट्स ऑफ हिज। अब क्या हुआ कि जो हरियाणा में जो 2 प्लॉट्स थे उनको तो सेल कर पाना पॉसिबल था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया कि वहाँ पे आप आउटसाइडर को कोई भी प्लॉट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कोई गलती ना हुए ही एक लॉ ऐसा बन गया जिसके कारण अब ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में कोर्ट क्या देखेगी कि क्या ये दोनों जो पार्ट हैं, एक पार्ट तो परफॉर्म हो सकता है और एक पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है। अब कोर्ट देखेगी कि क्या इन दोनों पार्ट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या ये दोनों पार्ट सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट हैं या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो 2 प्लॉट हरियाणा वाले तो वो बेच ही सकता है, 2 सिर्फ यूपी वाले ही तो नहीं बेच पा रहा है, ठीक है। और दोनों प्लॉट्स कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, राइट। ऐसा नहीं है कि एक प्लॉट खरीदेगा तो दूसरे में फ़ायदा या नुकसान होने के चांसेस हैं, राइट। सो इस एक पार्ट को परफॉर्म करा सकता है कोर्ट क्योंकि ये इंडिपेंडेंट और सेपरेट है, और दूसरा पार्ट ना परफॉर्म कराए भी पार्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकती है। फाइन। सो दिस इज द थर्ड एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। थर्ड एक्सेप्शन क्या है कि अगर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट है एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उस पार्ट को परफॉर्म कराया जा सकता है बजाय दूसरे पार्ट को अनपरफॉर्म्ड छोड़ देने के। फाइन। सो 3 एक्सेप्शन क्या है। जनरल रूल पहले बताइए क्या है कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। अब आते हैं एक्सेप्शंस पे, किन केसेस में पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। जब अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो बहुत स्मॉल पोर्शन है, तो उस केस में कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है कि कोर्ट अगर चाहे तो स्मॉल पोर्शन को इग्नोर करके स्मॉल पोर्शन के लिए कॉम्पनसेशन दे के भी लार्ज पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकती है। इसके अलावा अगर जो दोनों पार्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के जिनमें से एक परफॉर्म हो सकता है दूसरा परफॉर्म नहीं हो सकता है, और जो दोनों पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, तो उस केस में भी कोर्ट जो है एक पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अब तीसरा एक्सेप्शन क्या है, किस सिचुएशन में अगर कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनपरफॉर्म्ड रह रहा है और सिर्फ स्मॉल पोर्शन को ही आप परफॉर्म करा पा रहे हो, तो वहाँ पे अगर ऑपोजिट पार्टी मतलब जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था जो परफॉर्म जिसने अपना पार्ट तो परफॉर्म कर दिया था, अगर वो पार्टी चाहे तो कंसिडरेबल पार्ट अनपरफॉर्म्ड रहने के बावजूद भी कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। नाउ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 12 बेसिकली प्रोवाइड्स the one of the aspect of inability to perform। so हमने देखा कि सेक्शन 12 में हर जगह यही बात की गई है कि जिस पार्टी ने एग्रीमेंट किया है वो अनेबल है परफॉर्म करने के लिए। सो अनेबल टू परफॉर्म का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर द एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेनेशन सेज फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन a party to a contract shall be deemed to be unable to perform the whole of his part of it if a portion of its subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of its performance।
सो अनेबल टू परफॉर्म का क्या मतलब है कि जिस दिन पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन तो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट में था, लेकिन जिस दिन परफॉर्म करने की बात आती है उस दिन वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो उसको भी हम ये मान लेंगे कि पार्टी जो है वो अनेबल है टू परफॉर्म दी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू ए इज द बिल्डर ऑफ सर्टेन फ्लैट्स, तो इसने 10 फ्लैट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। बी इज दी बायर। अब हुआ क्या कि इसके 5 जो फ्लैट्स हैं वो अर्थक्वेक में डिमोलिश हो गए। ठीक है, तो जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन तो वो एग्जिस्टेंस में था सब्जेक्ट मैटर, लेकिन जब हैंडओवर करने की बात आई उस दिन वो सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो उस सिचुएशन को भी हम क्या बोल देंगे, दैट ही इज डीम्ड टू हैव बीन अनेबल टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। सो अनेबल टू परफॉर्म का सीधा सा मीनिंग अगर हम यहाँ से लें तो इसका मतलब ये है कि पार्टी की खुद की कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस सिचुएशन में, बल्कि नेचुरल इंस्टेंसेस या फिर नॉर्मली चीज़ें कुछ ऐसी होगी कि बिना उस पार्टी के फॉल्ट के ही दैट पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसका फॉल्ट है तो उस केस में अनेबल टू परफॉर्म वाली बेनिफिट्स उसको नहीं दिए जाएंगे। नाउ सेक्शन 13 talks about the rights of purchaser or lessee against a person with no title or imperfect title. For example, A is a man who pretended that a particular piece of land belonged to him, और उसने उस प्रिटेंशन पे उस लैंड को बी को बेच दिया। ठीक है, उसने ये कहा कि ये मेरा लैंड है, हालांकि ये इसके फादर का लैंड था। ठीक है, तो रजिस्ट्री इसके फादर के नाम पे थी, इसके नाम पे थी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि ये लैंड उसी का है और उसने कंसिडरेशन अमाउंट भी ले लिया बी से। ठीक है, अब सब्सिक्वेंटली क्योंकि इसका तो टाइटल ही नहीं था, ही हैड एन इम्परफेक्ट टाइटल टू दी लैंड, तो उस केस में अब इस परचेजर के क्या राइट्स होंगे, दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सेल की बात की है, अगर लीज पे भी देते हैं आप किसी के लैंड को विदाउट हैविंग अ परफेक्ट टाइटल ओवर द लैंड, तो उस केस में जो लेसी है उसके क्या राइट्स होंगे। सो क्लोज 1 सेज वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो दिस इज सेलिंग और letting of immovable property having no title. The person who had sold or let the particular immovable property, he himself was having no title over the property, उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, और only an imperfect title या फिर सिर्फ imperfect title था। The purchaser or lessee subject to other provisions of this chapter has the following rights, तो उस केस में उस परचेजर जिसने उससे वो ज़मीन या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी या लीज पे ली, उसके क्या राइट्स होंगे। सब क्लोज ए सेज इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। फाइन। सो जिस टाइम उसने वो प्रॉपर्टी बेची बी को, उस टाइम तो उसका इम्परफेक्ट टाइटल था, उसके फादर की वो प्रॉपर्टी थी या फिर उसके पास कोई टाइटल ही नहीं था, लेकिन सब्सिक्वेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद इसके फादर की डेथ हो जाती है और ये जो प्रॉपर्टी था, जो पीस ऑफ लैंड था, वो अब ए के पास ही आ जाता है। तो अब बी के पास क्या राइट है कि ये ए को कंपेल कर सकता है अब कि अब तो तुम्हारे पास ये टाइटल आ गया इस प्रॉपर्टी का, अब तुम मुझे ये प्रॉपर्टी बेचो। बेसिकली यहाँ पे अब ए ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे पास तो ये प्रॉपर्टी थी नहीं जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सब्सिक्वेंटली आपके पास वो प्रॉपर्टी आ गई है। तो यहाँ पे लेसर या वेंडर के पास एक राइट आ जाता है कि वो उस वेंडर या जो लेसर है उसको कंपेल कर सकते हैं। वेंडी या लेसर के पास ही राइट है। Where the concurrence of other persons is necessary for validating the title
and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor. The purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence. अब बात आती है कि जो वेंडर या लेसर था उसके पास टाइटल तो था उस प्रॉपर्टी का, उसी की प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी वो किसी की कंसेंट से ही बेच सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी ने चार्ज बना रखा था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर वो प्रॉपर्टी एक पार्टनरशिप फर्म की थी जिसमें बाकी सारे पार्टनर्स की भी कंसेंट जो है लेने की ज़रूरत थी। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर वो पार्टनर बोले तो दूसरे पार्टनर उसको कंसेंट देंगे, तो उस केस में भी दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज द परचेजर और लेसी, मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कन्वेंस। फाइन। सो अगर उसके कहने पे वो बाउंड है टू गिव द कंसेंट, तो उस केस में जो परचेजर या लेसी है वो उसको कंपेल कर सकता है कि आप इनकी सहमति लेके आइए। फाइन। सो यहाँ पे बात थी कि टाइटल ही इम्परफेक्ट था, और उसके बाद अगर सब्सिक्वेंटली उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है तो उस केस में परचेजर या लेसी उसको कंपेल कर देगा। अब दूसरी बात आती है कि वो प्रॉपर्टी तो दे सकता है, प्रॉपर्टी उसी की है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सिर्फ किसी और के कंकरेंस पे ही दे सकता है, और जिसकी कंकरेंस पे वो दे सकता है अगर वो उससे कंकरेंस मांगेगा तो वो पर्सन वो उसको मना भी नहीं कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में कंकरेंस के लिए भी कंपेल किया जा सकता है उसको। Where the vendor professes to sell unencumbered property, but the property is mortgaged, the property that is subject matter of the sell is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money। लेकिन जो mortgaged की गई है प्रॉपर्टी वो उस सेल अमाउंट से कम है, and the vendor has in fact only a right to redeem it, और यहाँ पे सिर्फ वेंडर के पास ही राइट है कि वो उसको रिडीम करा सकता है। The purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a valid discharge, and where necessary also a conveyance from the mortgagee। So ये piece of land है। A ने क्या किया, A ने इस प्रॉपर्टी को mortgage कर दिया, उसके बदले में लोन भी ले लिया, और अब B ने इसी प्रॉपर्टी को जो है ए से खरीद लिया, ठीक है, और बी को पता भी नहीं था कि ये प्रॉपर्टी तो मोर्टगेज्ड है, ठीक है। उसके बाद बी को जब ये पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी तो मोर्टगेज्ड है, तो बी क्या करेगा, अगर मोर्टगेज्ड अमाउंट सेलिंग अमाउंट से कम है, ठीक है, इसने 1 करोड़ में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और इसने मोर्टगेज की थी ये फॉर एग्जांपल 50 लाख में, तो यहाँ पे ये जो परचेजर है उसके पास क्या राइट है कि वो ए को बोल सकता है कि आप अपनी ये प्रॉपर्टी रिडीम कराएं और मुझे दें। फाइन। सो यहाँ पे भी कंपेल किया जा सकता है उसको। सब क्लोज डी सेज वेयर दी वेंडर और लेसर sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title, the defendant has a right to a return of his deposit if any, with interest thereon to his costs of the suit and to a lien for such deposit, interest and cost of the interest if any of the vendor or lessor if the property which is subject matter of the contract। अब सब क्लोज डी की सिचुएशन की बात कर रहा है कि ए ने अपनी ये प्रॉपर्टी बी को बेच दी, ठीक है। अब बी ने पूरा अमाउंट नहीं दिया, उसने कुछ मान लो 1 करोड़ में इसने ये एग्रीमेंट किया था कि 1 करोड़ रुपीज़ में ये खरीदेंगे, और उसने सिर्फ 50 लाख ही दिए। अब ए कोर्ट के पास जाता है कि जी मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म कराइए, आप मुझे पूरा अमाउंट दिलाइए, मैंने तो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी है बी को। अब कोर्ट में पाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी तो ए की है ही नहीं, ए का टाइटल ही नहीं था इसके पास, ए के पास तो इस प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं था। अब बी क्या करेगा, बी के पास एक राइट है इसी केस में ही कि वो अपना डिपॉजिट भी वापस मांग सकता है कि भाई अब तो प्रूव हो गया कि तो प्रॉपर्टी तुम्हारी थी नहीं, तो जितना मैंने पैसा दे रखा है वो भी तुम वापस करोगे मुझे, ना कि मैं तुम्हें 50 और लाख दे के ये प्रॉपर्टी लूँगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का टाइटल इम्परफेक्ट था इस प्रॉपर्टी पे। फाइन। तो यहाँ पे
बेशक से केस तो ए ने किया था कि स्पेसिफिकली परफॉर्म कराओ, लेकिन अगर पाया जाए कि ए का तो टाइटल ही नहीं था उस प्रॉपर्टी पे या इम्परफेक्ट टाइटल था, तो उस केस में जो डिफेंडेंट है वो भी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्लेम कर सकता है, दैट टू विद इंटरेस्ट। फाइन। सो अगर इम्परफेक्ट टाइटल होता है तो ये सारी जो रेमेडीज हैं वो परचेजर या लेसी के पास अवेलेबल रहेंगी। Now clause 2 says the provisions of subsection 1 shall also apply as far as may be to contracts for the sale or hire of movable property. So यहाँ पे हमने देखा था कि ये प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई किया था हमने, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के केस में। लेकिन क्लोज 2 क्या कहता है कि जितना पॉसिबल हो सके मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी हम ये सारे प्रोविजंस अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई अगर दूसरे को ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी बेच देता है उसके पास अपना परफेक्ट टाइटल भी नहीं था, तो उस केस में भी जो परचेजर है उस मूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके पास ये सारे राइट्स रहेंगे। फाइन। सो लेसी या परचेजी के पास क्या क्या राइट्स हैं कि अगर सब्सिक्वेंटली वो प्रॉपर्टी उस वेंडर या लेसर के पास आ जाती है तो वो कंपेल कर सकता है उस वेंडर या लेसर को कि आप वो प्रॉपर्टी मुझे वापस दीजिए, या फिर अगर वो पर्टिकुलर जो वेंडर या लेसर है उसको किसी की कंकरेंस की ज़रूरत है वो प्रॉपर्टी हैंडओवर करने के लिए, तो यहाँ पे जो परचेजर या लेसी है वो उन कंकरेंस लेने के लिए भी कंपेल कर सकता है उस पर्सन को। और इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है तो मॉर्टगेज रिडीम कराने के लिए भी कंपेल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर वेंडर या लेसर खुद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट के पास गया था और वहाँ पे पाया गया कि वेंडर या लेसर के पास तो टाइटल ही नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो उस केस में डिफेंडेंट के पास मतलब परचेजर या लेसी के पास ये राइट है कि वो अपना अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता है जितना उसने पे किया है। फाइन। नाउ कमिंग टू येट अनदर एक्सट्रीमली important section which is section 14 of the specific relief act. So this particular provision provides with the contracts which are not specifically enforceable. So हमने अभी तक पढ़ा कि किन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हो, राइट। अब सेक्शन 14 एक ऐसे सेक्शन है जो बात करता है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकता है। कोर्ट के पास ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है एक तरह से कि कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट ही नहीं कर सकता है। अदरवाइज एज अ जनरल रूल whenever a breach of contract case is brought forth before the court of law, the court is bound to give specific performance. Now section 14 is again an exception to section 10. सेक्शन 10 जो था वो था जनरल रूल के अगर कोर्ट के पास कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आएगा तो कोर्ट उसमें क्या रिलीफ देगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब सेक्शन 14 जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। सो इट सेज द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। सो यहाँ पे कोई और चॉइस नहीं है, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर गिवन अंडर सेक्शन 14 ऑफ दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। And what kind of these contracts are? Let's have a look. Clause A says where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provisions of section 20. अगर किसी पार्टी ने substituted performance ले ली है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उस पार्टी को अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात करा सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस की, हालांकि ये हम सेक्शन 20 में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट हैव एन ओवरव्यू कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एग्जैक्टली है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ए ने बी को प्रॉमिस किया था टू बिल्ड 10 बिल्डिंग्स, कि ये इसको 10 बिल्डिंग बना के हैंड ओवर करेगा। ठीक है, उसके रिगार्ड में बी ने उसको काफ़ी पेमेंट कर भी दी। अब
ए जो है वो कहता है कि मैं तो नहीं बना पाऊंगा ये बिल्डिंग्स, उसने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, उसने उन बिल्डिंग्स को बनाने से मना कर दिया। अब जब बी कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि चलो ए तो नहीं बना पा रहा है, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग ही तो बनानी है। अब बी ने क्या किया कि बी ने मान ली कोर्ट की बात, और बी ने सी जो थर्ड पार्टी थी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर कर दिया कि ए तो नहीं बना पा रहा है, आप सी को बोल दिया है कि सी जो है वो 10 बिल्डिंग्स बना के बी को हैंड ओवर करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो सब्सटीट्यूट हो गई, ए को किसने सब्सटीट्यूट कर दिया, सी ने। सो यहाँ पे बी ने सी का जो परफॉर्मेंस था वो इन सब्सटीट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया है। सो यहाँ पे अगर बी ने सब्सटीट्यूशन जो है वो परफॉर्मेंस का एक्सेप्ट कर लिया है तो वो अब स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है। अब बी वापस से ये नहीं कह सकता है कि ए फिर से इसको 10 बिल्डिंग्स बना के देगा, क्योंकि बी ने ऑलरेडी सी की सब्सटीट्यूशन की जो सर्विसेज थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। फाइन। सो यहाँ पे कोर्ट ने ए से वो पैसे वापस लेके सी को जो है दे दिए और कहा कि आप ये बिल्डिंग बना के दे दीजिए बी को। ठीक है, तो क्योंकि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस इसको ऑलरेडी मिल चुकी है, रिलीफ तो इसको मिल चुका है, अब ये दोबारा से ये नहीं कह सकता कि नहीं ए ही वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा या ए ही वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देगा। फाइन। सो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि अगर जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है अगर वो एक ब्रीच कर देती तो अगर दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी से आप वो परफॉर्मेंस करा लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो 2018 के अमेंडमेंट के बाद ही आया है, उससे पहले सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं था। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन एज वेल। फाइन। सो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अगर किसी पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली तो वो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकती है या क्लेम नहीं कर सकती है। Then clause B says a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise। अब कॉन्ट्रैक्ट A और B का कुछ ऐसा है जिसमें कॉन्टिन्यूस ड्यूटी की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल A और B के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट था कि जो A है वो अगले 2 साल के लिए बी के ऑफिस में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करेगा। ठीक है, अब ये जो ड्यूटी है ये कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ टू सुपरवाइज के ए एग्जैक्टली वो काम कर भी रहा है या नहीं। सो सुपरवाइज नहीं कर सकता यहाँ पे कोर्ट। फाइन। सो इस सिचुएशन में जहाँ पे कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है या फिर कोई कॉन्टिन्यूस सर्विस की बात की गई है, ठीक है, अगर एक इंस्टेंस पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है कि आपका एक आपस में लेन देन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो वहाँ पे तो सब्सटीट्यूटेड जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना काफ़ी आसान है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस ड्यूटी अगले 2 साल तक अब कोर्ट यही देखता थोड़ी ना रहेगा कि ए परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करेगा। ठीक है, तो बी को यहाँ पे डैमेजेस दे दिए जाएंगे ए की तरफ से कि भाई आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उसके लिए आप डैमेजेस दे दीजिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, जो वादा किया था वो फुलफिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये बात है कॉन्टिन्यूस ड्यूटी की। थर्डली, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म्स। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नेचर का है जो पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए इज अ पेंटर, तो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको 10 पेंटिंग्स पेंट करके हैंड ओवर करेगा। अब ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब अगर बी कोर्ट में जाता है तो क्या कोर्ट ऐसे केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है? क्या ए को कंपेल कर सकती है कि नहीं आप पेंटिंग बना के ही दो? द आंसर इज नो, because the contract is dependent on the personal qualifications of the party। अब यहाँ पे कंपेल भी कर दिया, ए बहुत ही खराब सी पेंटिंग्स बना के दे दे, है ना, खुंदक में, तो यहाँ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, वहाँ पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। देन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल।
अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको डिटरमाइन किया जा सकता है और या फिर असर्टेन किया जा सकता है, दैट कैन बी ब्रॉट टू एन एंड अंडर द गिवन कंडीशंस, कि उसको जल्दी से रफा दफा किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि ए जो है वो बी को 10 बुक्स ला के देगा, ठीक है। मान लो ए जो है वो शॉपकीपर है और आप स्टूडेंट हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ कि वो आपको 10 बुक्स ला के दे। अब ए वो 10 बुक्स नहीं ला पाया, उसने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का। अब जब आप कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट बोलेगा कि भाई 10 बुक्स तो इनका तो बहुत हम अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट डिटर्मिनेबल, इसको यहीं पे रफा दफा किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना दे के बल्कि डैमेजेस ही दे देगा। फाइन। सो देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है या फिर डैमेजेस दिए जा सकते हैं, दो ही तो रेमेडी होंगी। अब सेक्शन 14 में अगर कोई केस फॉल करता है तो वहां पे सिर्फ डैमेजेस ही दिए जाएंगे या कॉम्पनसेशन ही दिया जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कराया जा सकता है। जो वादा किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो प्रॉमिस था, वो फुलफिल एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके सब्सटीट्यूशन में कुछ और रेमेडी दी जा सकती है। और वो कुछ और रेमेडी क्या है? वो कुछ और रेमेडी है डैमेजेस। फाइन। सो ये 4 इंस्टेंसेस हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। पहला क्या इंस्टेंस है? व्हेन द पर्सन हैज एक्सेप्टेड द सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। दूसरा क्या इंस्टेंस है? व्हेन द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी। थर्ड इंस्टेंस क्या है? व्हेन द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस of the parties। और फोर्थ इंस्टेंस क्या है? when the nature of the contract is determinable। ये चारों इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस इनमें से बहुत बार आते हैं। फाइन। तो ये 4 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस से हमने लिया S, कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी से हमने लिया C, पर्सनल क्वालिफिकेशन से हमने लिया Q और डिटर्मिनेबल से हमने लिया D। SCQD। दिस इज द कीवर्ड टू रिमेंबर सेक्शन 14 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखो जब भी आप कोर्ट के पास जाओगे कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, कोर्ट आपसे पूछेगा कि हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों दें, ऐसे क्यों दें, ऐसे क्यों दें। हम तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा कोर्ट? ऐसे क्यों दें, ऐसे क्यों दें? क्योंकि हम तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे दे ही नहीं सकते हैं। ऐसे क्यों दें, ऐसे क्यों दें। SCQD, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी, पर्सनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन और डिटर्मिनेबल। ये 4 कीवर्ड अगर आपको याद हो जाते हैं, that will be more than sufficient for you to get the answer right if the question comes from section 14 of the specific relief act। ठीक है। तो सिर्फ ये 4 ही इंस्टेंसेस है जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम नहीं की जा सकती अंडर सेक्शन 14, ठीक है। सेक्शन 14 में चारों इंस्टेंसेस कैसे हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं की जा सकती है। ये जो सेक्शन 14 का प्रेजेंट फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये है 2018 के अमेंडमेंट के बाद। अगर 2018 के अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 14 का रूप देखें तो वो है ये सेक्शन 14। ये इतना बड़ा सेक्शन 14 था। आप काफ़ी लकी हो कि अब आपको बहुत इतना बड़ा सेक्शन जो है 14 वो याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये 4 ही सब सेक्शंस याद करने हैं, ठीक है। अदरवाइज 2018 से पहले इतना बड़ा ये सेक्शन याद करना पड़ता था, जिसमें ये भी कहा गया था द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कॉम्पनसेशन इन मनी इज एन एडिक्वेट रिलीफ। सो अगर मनी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है तो उस कोर्ट में कोर्ट
के पास ये बाइंडिंग था कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा ही नहीं सकती है, ठीक है, क्लेम ही नहीं कर सकती है पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन फिलहाल क्या सिचुएशन है कि बेशक से कॉम्पनसेशन इन मनी मे बी एन एडिक्वेट रिलीफ बट स्टिल द कोर्ट इज बाउंड टू गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज अ रिलीफ एंड नॉट कॉम्पनसेशन इन मनी, ठीक है। उसके अलावा जो और इंस्टेंसेस थे जहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकती थी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच रन इनटू सच माइन्यूट एंड न्यूमरस डिटेल्स ऑफ विच इज सो डिपेंडेंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन। ये कंडीशन तो फिलहाल अभी भी है कि अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट है और ऑन वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज और अदरवाइज फ्रॉम इट्स नेचर इज सच दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन मटीरियल टर्म्स, तो उस केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती थी। अब ये वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज वाला प्रोविजन हटा दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके अलावा अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल, दिस इज स्टिल केप्ट, ठीक है, डिटर्मिनेबल है अगर कॉन्ट्रैक्ट तो उसको भी स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी, इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी वाला प्रोविजन भी रखा गया है। सो जो हटाया गया है वो है एडिक्वेट रिलीफ जो है, अगर कॉम्पनसेशन मनी हो सकता है तो वहाँ पे भी पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी गिवन एज अ मैटर ऑफ रूल even in case of when the adequate relief could have been compensation in money also। इसके अलावा आर्बिट्रेशन एक्ट में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिनको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, तो उन केसेस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी, ये सब अब हटा दिया गया है। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड वगैरह के ऊपर भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी, ये सब भी अब हटा दिया गया। फाइन, सो ये सारे ही प्रोविजन अब हटा दिए गए हैं। द कोर्ट कैन डिनाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 14 ओनली अंडर 4 इंस्टेंसेज नाउ। इससे पहले बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी कोर्ट को, लेकिन अब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर को कर्टेल डाउन कर दिया गया है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स को फुलफिल करना, ठीक है। सो अगर कोई बाहर से कोई कंपनी आती है हमारे देश में और हमारे देश के लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हम इंडियंस अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच ही करते रहेंगे तो क्यों कोई बाहर से आके हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करेगा। फाइन, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहेंस करने के लिए, और बाहर से ही ना आने वाले बल्कि अगर हमारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो भी अगर हर रोज़ उनके साथ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही होता रहेगा तो हर रोज़ वो जो है नए नए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना पाएंगे, राइट। सो उनके लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे है, जब आप दूसरे पार्टनर ने जो प्रॉमिस किया है उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को ही फुलफिल कराया जाए। और अब फिलहाल जो एक तरह से देखा जाए तो जो एडवोकेट्स हैं वो भी अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह देंगे कि आप जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें, क्योंकि अगर ये दूसरी पार्टी कोर्ट में चली गई तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ला सकती है और कोर्ट के पास भी अब कोई पावर नहीं है कि वो डिनाई कर पाए ये रिलीफ, ठीक है। तो कोर्ट इज ऑल्सो बाउंड नाउ टू गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिलीफ इंस्टेड ऑफ द कॉम्पनसेशन इन मनी। फाइन, सो इससे एक तरह से पूरा हमारा जो देश का ढांचा है उसमें ही काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगे, हमारे नेचर में चेंजेस आएंगे कि हमने जो प्रॉमिस किया है वो हम ना तोड़ें, अदरवाइज कोर्ट भी वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए हमें कंपेल कर सकती है। फाइन, सो सिर्फ 4 ही इंस्टेंसेस हैं सेक्शन 14 में जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है, और वो क्या इंस्टेंसेस हैं? ऐसे क्यों दें, ऐसे क्यों दें भाई हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ, सिर्फ ऐसे क्यों दें, SCQD में ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। Then section 14A is yet another important section that was also added in the year 2018 by the Amendment Act of 2018, ठीक है। section 14A बात करता है power of court to engage experts। कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट तो नहीं है, राइट। सो जजेस होते हैं, आप लोग कल को जजेस बनोगे, आपने लॉ तो पढ़ रखा है, लेकिन क्या आपको मैकेनिक्स की नॉलेज है, क्या आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज है, क्या आपको अकाउंट्स की नॉलेज है,
द आंसर इज ऑब्वियसली नो। हो सकता है आप में से कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसको हो नॉलेज, लेकिन एज अ लॉ ग्रेजुएट यू ऑल्सो हैव योर ओन लिमिटेशंस। तो उस केस में अगर ऐसा कोई केस आता है आपके पास जिसमें आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है कि क्या ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। मान लो आर्किटेक्चर का कोई इशू आया है, तो उसमें किसी आप आर्किटेक्ट से पूछ सकते हो कि क्या इसमें किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है या फिर कोई भी नॉर्मली ऐसे ही बना सकता है। तो बेसिकली उन एक्सपर्ट से आप डिस्कस कर सकते हो। So section 14A provides with the power of court. This is a power of the court of law to engage experts. It says, without prejudice to the generality of the provisions contained in the Code of Civil Procedure, in a suit under this Act, where the court considers it necessary to get expert opinion, अगर कोर्ट को लगता है कि expert opinion की ज़रूरत है, to assist in on any specific issue involved in the suit, it may engage one or more experts and direct to report to it on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence including production of documents on the issue. So अगर कोर्ट को लगता है कि किसी एक इशू को डिसाइड करने के लिए किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कोर्ट किसी एक्सपर्ट से जो है ओपिनियन मांग सकती है। एंड द कोर्ट कैन ऑल्सो आस्क द पार्टी टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स ऑन द पर्टिकुलर इशू। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मान लो ए और बी के बीच में है। अब ए बोल रहा है, ए इज़ द आर्किटेक्ट, और इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि ए जो है वो बी के लिए एक बिल्डिंग बनाएगा। अब ए बोल रहा है कि देखो ये बिल्डिंग तो मैं नहीं बना पाऊंगा, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे कोर्ट के पास कि क्या ये जो ढांचा बनाने वाला था इसमें किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। फाइन, तो उस इशू को कौन डिसाइड करेगा? उस इशू को जो है कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन कोर्ट यहाँ पे किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकती है, किसी आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट की हेल्प लेके ये डिसाइड कर सकती है कि क्या ये आर्किटेक्ट की पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर कोई भी आर्किटेक्ट इस पर्टिकुलर ढांचे को बनाएगा तो वो वैसे ही बनाएगा, और उसके लिए हो सकता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट जो है मंगा सकता है। दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मध्य प्रदेश का जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसमें सेक्शन 14 के सारे क्लोजेस से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसके सारे क्लोजेस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन में एक्सपर्ट को एंगेज करने की बात की गई है। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 14A ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पहले तो ये सेक्शन 14A ही याद करना है। उसके बाद यहाँ पे किसी स्पेशल इशू पे कोर्ट को अगर लगता है कि एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है तो वहाँ पे कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्सपर्ट को बुला सकती है और डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करने के लिए कह सकती है। देन क्लोज 2 सेज द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन to the expert or to produce or to provide access to any relevant documents, goods or other property for his inspection। यहाँ पे कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को मतलब पार्टी हो या नॉन पार्टी हो, उसको भी कंपेल कर सकती है कि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे एक्सपर्ट को। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी उस पर्सन की जहाँ पे इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है उस पर्सन को कंपेल कर सकती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कराएं इन एक्सपर्ट के द्वारा। देन क्लोज 3 सेज द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट। अब यहाँ पे एक्सपर्ट सारे कागज़ कार्रवाई करने के बाद, प्रॉपर्टी को विजिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा या अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, सो द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। अब कोर्ट ने एक्सपर्ट को बुलाया है तो सिर्फ बुलाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक्सपर्ट साहब ने जो ओपिनियन दिया है, जो रिपोर्ट दी है अपनी, उस रिपोर्ट या ओपिनियन को भी जो एविडेंस है उसके रिकॉर्ड में रखना कोर्ट की अब एक ड्यूटी है। फाइन, सो जो एक्सपर्ट है उनका जो भी ओपिनियन है या रिपोर्ट है, दैट ओपिनियन और रिपोर्ट शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सूट। यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने बुला तो लिया एक्सपर्ट को, लेकिन उसने जो ओपिनियन दिया या उसने जो रिपोर्ट दी है उसको रफा दफा कर दिया या फिर
रिकॉर्ड में रखा ही नहीं। यहाँ पे कोर्ट के पास ही मैंडेटरी है, आपने अगर एक्सपर्ट को बुलाया है तो आप उसकी रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में रखेंगे। एंड द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट में एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट में एग्जामिन दी एक्सपर्ट। इसके अलावा जो पार्टीज भी हैं सूट की, वो भी उस एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकती है कि कितनी नॉलेज है, आपको नॉलेज भी है या नहीं, या बस ऐसे ओपिनियन दिए जा रहे हैं, या फिर आपको इशू की इंट्रिकेसीज को भी पता ही या नहीं। फाइन, सो एग्जामिन दी एक्सपर्ट पर्सनली इन ओपन कोर्ट और ऑन एनी ऑफ द मैटर्स रेफर टू हिम और मैंशनड इन हिज ओपिनियन। फाइन, सो यहाँ पे सिर्फ कोर्ट ही ओपिनियन नहीं लेगा, बल्कि जो दोनों पार्टीज हैं सूट के लिए, वो भी उस एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकती है, उसका एग्जामिनेशन कर सकती है। द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फी। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट को बुला लिया फ्री में ही, उस जो भी एक्सपर्ट होंगे उनको फी भी देनी पड़ेगी, कॉस्ट और एक्सपेंस एज द कोर्ट में फिक्स। फाइन, सो जो भी एक्सपर्ट यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसके ओपिनियन लेना है कोर्ट को, उसको जो है कोई पेमेंट भी दी जाएगी, विच शैल बी पेएबल बाय द पार्टीज इन सच प्रोपोर्शन एंड एट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। और वो जो फीस या कॉस्ट है एक्सपर्ट की, वो कौन पे करेगा? पार्टीज के द्वारा वो फीस ली जाएगी। फाइन, सो एक्सपर्ट जो है उसको बुलाया जा सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट को अगर लगता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की किसी भी प्रोविजन में एक्सपर्ट के ओपिनियन की जरूरत है, ठीक है, तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, वैसे ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी अगर कोर्ट किसी इंट्रिकेसी में फंस जाती है, या कोर्ट को लगता है कि चलो एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं, थोड़ा कंसल्टेशन हो जाएगी, फिर हम बढ़िया डिसीजन दे पाएंगे, तो उस केस में कोर्ट जो है एक्सपर्ट्स को भी एंगेज कर सकती है, पहली बात। और सेक्शन 14A में दिया हुआ है ये। दूसरी बात, वो जो एक्सपर्ट आएंगे, वो जो भी ओपिनियन या रिपोर्ट देंगे, दैट ओपिनियन और रिपोर्ट शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सूट। सूट के रिकॉर्ड में वो उनकी रिपोर्ट या ओपिनियन को रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि रफा दफा कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो भी एक्सपर्ट आएंगे, उनको फीस या कॉस्ट या फिर उनके एक्सपेंसेस, आने जाने का जितना भी खर्चा है, उनकी जितनी भी फीस है, वो उनको पे कर दी जाएगी। और वो पेएबल किसके द्वारा होगी? पार्टीज के द्वारा। और वो किस प्रोपोर्शन में दी जाएगी? जो कोर्ट डिसाइड कर सकता है। हो सकता है कि ए को बोले कि आप 60% दें और बी को बोले कि आप 40% पे करें, ठीक है। तो पेमेंट जो है वो पार्टीज के थ्रू ही आएगी। फाइन, सो दिस वाज सेक्शन 14A ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। So these were the main provisions that I wanted to discuss with you in this lecture. Now let's discuss some of the MCQs from these provisions. The first question is, Section 9 of the Specific Relief Act 1963 provides for the grounds on which specific performance of contract can be granted, the defenses which a person against whom the specific performance is claimed may plead, the defenses which a person against whom the relief of specific performance is claimed cannot plead, or the grounds on which specific performance of a contract cannot be granted. Section 9 क्या बात करता है? ये बात करता उन डिफेंसेस की, the defenses which a person against whom the relief of specific performance is claimed can plead, the answer is option B, जो वो प्लीड कर सकता है, ठीक है। तो डिफेंडेंट क्या डिफेंसेस प्लीड कर सकता है, उनकी बात कहाँ की गई है? सेक्शन 9 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। देन सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, द कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नन ऑफ द अबव। सो सेक्शन 10 इज द जनरल section of specific performance of contract, and it provides with the provision of the contracts which can be specifically enforced। कौन से contracts को specifically enforce कराया जा सकता है। और section the contracts which cannot be specifically performed, ये किस section में दिया गया है? section 14। so section 10 दिया हुआ है कि किन contracts को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जा सकता है, और सेक्शन 14 क्या बात करता है कि किन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो सेक्शन 10 और 14 जो हैं वो एक तरह से
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये ध्यान रखना, सेक्शन 10 में जिन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकते हैं उनकी बात की गई है, और सेक्शन 14 में किन कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। देन सेक्शन 11 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रेफर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद आर्बिट्रेशन, ट्रस्ट्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सो सेक्शन 11 में किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई है? रिलेटिंग टू सेक्शन 111, 1 इज द मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ। सो जो पर्सन के मन में जो है वही उसके पब्लिक लाइफ में है, तो उसको हम क्या मानते हैं? ट्रस्ट वर्दी। सो ट्रस्ट इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, राइट? एंड one is also the topper rank. This is also quite positive, right? So trust topper कौन होगा? जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी 1 जिसकी मेंस में भी फर्स्ट रैंक होगी और जिसका इंटरव्यू में भी फर्स्ट रैंक होगी, वो क्या बन जाएगा? टॉपर। ठीक है, तो 11 में क्या दिया हुआ है? ट्रस्ट की बात की गई है, और टॉपर को तो हम ट्रस्ट कर ही सकते हैं क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होगी पढ़ाई के लिए, राइट? दैट पर्सन इज ऑल्सो क्वाइट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो यही तरीके होते हैं कुछ चीज़ों को याद करने के, जैसे भी याद हो, मेन मकसद हमारा याद करना है। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, a contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust is specifically enforceable at the instance of the trustee, specifically enforceable at the instance of the second party, specifically enforceable either at the instance of the trustee or at the instance of the second party, or not specifically enforceable. So trustee जो था किसी ट्रस्ट का, उसको जितनी पावर दी गई थी उसको एक्सीड करके उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी थर्ड पार्टी के साथ। कैन दैट कॉन्ट्रैक्ट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड और नॉट? देखो, नॉर्मली ट्रस्ट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली एनफोर्स कराना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 11, लेकिन एक एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का, जो सेक्शन 11 क्लोज 2 में ही दिया गया है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर ट्रस्टी अपनी पावर के बियॉन्ड कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। So the contract which is made by the trustee in excess of his powers or in breach of the trust, that cannot be specifically enforceable. Section 12 clause 2 of the specific relief act applies where the part which remains unperformed of the contract is small portion, considerable part, equal part or none of the above. So section 12 clause 2 सेक्शन 12 किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करता है? पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 12 में भी क्लोज 2 किस एस्पेक्ट की बात करता है? व्हेन द पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज अ स्मॉल पोर्शन। फाइन, सो स्मॉल पोर्शन की बात करता है सेक्शन क्लोज 2। क्लोज 3 जो है वो कंसिडरेबल पार्ट अगर अनपरफॉर्म्ड रहे तो उसकी बात करता है। Specific performance of a part of the contract has been dealt with under which section? Section 19, Section 10, Section 11 or Section 12. Specific performance of part of contract. Part का मतलब है आधा। आधा का मतलब है आधी रात कब होती है? रात को 12 बजे। Section 12 talks about part performance of the contract. Specific performance of part of the contract. Under section 12 of the specific relief act, the general rule is that the specific performance of a part of the contract can be granted, the specific performance of a part of the contract shall not be granted, the specific performance of a part of the contract may not be granted, a contract can be performed in piecemeal. So general rule क्या कहता है section 12 का? The general rule of section 12 says that the court shall not direct the specific performance of a part of a contract. So it says the specific performance of a part of the contract shall not be granted. ये है general rule, और इसके कुछ exceptions हैं वो
सेक्शन 12 में ही दिए गए हैं। लेकिन जनरल रूल यही कहता है कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है, या तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म कराओ या फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही डैमेजेस दो। सेक्शन 13 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज नो एप्लीकेशन when the transfer has been effected in respect of a property in which vendor has no title or has an imperfect title। इसके लिए ही तो एप्लीकेबल है सेक्शन 13। in which vendor has a title, in which vendor has imperfect title or none of the above। सेक्शन 13 बेसिकली किन सिचुएशंस की बात करता है, जब वेंडर या लेसी के पास टाइटल नहीं था, लेसर के पास सॉरी, सो जो लीज आउट करता है प्रॉपर्टी को या सेल आउट करता है उसके पास इम्परफेक्ट या नो टाइटल था, तो उस केस में क्या उसके रेपरकशंस होंगे वो दिए हुए सेक्शन 13 में। सो सेक्शन 13 इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द वेंडर हैज़ अ टाइटल। उस केस में सेक्शन 13 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। Which of the following contract cannot be specifically enforced as per the provisions of section 14 of the Specific Relief Act? A contract to marry B. A contracts to marry B. A contracts with B that in consideration of 1000 rupees to be paid to him by B, he will paint a picture of B. A, an author contracts with B, a publisher, to complete a literary work, or all of the above। तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14। ए जो है वो बी से शादी करने के लिए प्रॉमिस करता है और बाद में मना कर देता है, सो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है। सो क्या अब बी कोर्ट में जाके ये बोल सकती है कि इसको कंपेल किया जाए मुझे शादी करने के लिए? द आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे भी हम रूल वही लगाएंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज़ बेस्ड ऑन दी पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन। फाइन, सो इसको हम स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। Then the next question is apart from that a contract with B that consideration of 1000 rupees, he will paint a picture of B. This is also based on the personal qualification of the painter। अब उसको आप कंपेल नहीं कर सकते हो, right? So this can also not be specifically performed। Then A, an author contracts with B, a publisher, to complete a literary work। Literary work is also based on the personal qualification of the person, that also cannot be specifically enforced। Fine, so the answer is all of the above cannot be specifically enforced। Then contracts not specifically enforceable have been enumerated in which section? Section 14, section 13, section 12 or section 15। This is given under section 14 of the Specific Relief Act। So this is it for today's lecture।